Assalamu alaikum, dear students of 10th class. Welcome back again after yesterday's break, the break of Eid, and best wishes of Eid to all of you. Hope you might have celebrated Eid with great enthusiasm. And dear students, whatever you might have received or collected Eidian from your parents, hope you will save it and also purchase some vegetables and also fruits instead of kurkuri and other gadgets. Dear students, today's topic is, as you know, we are reading history to chapter number the 19th century, 1815 to 1914. That is, today's topic is the late 19th century, that is colonialism. We have already learnt this when the European countries were trading with America after the discovery of America. Then after that very thing, also we also learned about the colonialism, which was uh, which was uh, which was our previous topic. So, dear students, this the during the colonialism trade was flourished in the 19th century, which increased the prosperity throughout the Europe, or we can say throughout the world at that very time. But at the same time, there were few um, drawbacks or disadvantages that we will see. The example of this colonialism we will see today, a great example. At that very time, first we will see that the European countries, which was developed countries, especially it was having a good industrial backup in each and every aspect. So it was trading with the other countries, migrating their selves, and at the same time they found that America there were resources and other things for their investment. Then they exported the same from the America to the Europe. So today we will see the best example of this colonialism, that we will take the example after reading this map of world. That is, my dear students, first यहाँ पे I have drawn the Asia, a few continents, that's Asia, Africa, this one is, dear students, this one is Australia, and this is North America, and this is South America. So in Asia we live here, and our country is in India. So dear students, after that the top side of this Asia is Russia. We can say the Russian Federation of Russia. So at the same time there is Europe. So we will learn here the Europe, and Europe was first trading with America, and this one is North America. Now there is the Canada or USA, and in the North America, and in South America there is the Brazil. There are so many big countries, but I have taken only one example, that is the Brazil. So there is Africa. So dear students, the colonial period, we can say the जिनके पास ज़्यादा कॉलोनियल पावर था, कॉलोनियल पावर जिनके पास था, इनका मुद्दा मकसद यही था कि हम कैसे रिसोर्सेज को, ये बहुत बड़ी चालाक थे क्योंकि इंडस्ट्रियल पावर भी इनके पास था, डेवलप्ड कंट्रीज ये थी यूरोपियन कंट्रीज। तो खासकर उन दिनों लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन यहाँ पे है, एक साइड में मैंने शेड इसको किया है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है। सो दे वर द न्यू कॉलोनियल पावर एट दैट वेरी टाइम। सो देयर पर्पस वाज, उनका मकसद ये था कि कहाँ पे हमें मौका मिल जाए कि जहाँ पे रिसोर्सेज हमें हों, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए और अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनमें इंपोर्ट्स लाने के लिए, अपने कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स लाने के लिए,
ये कोशिश करते थे कि हम कैसे नए नए लैंड्स को या नई नई कंट्रीज को हम कन्क्योर करें और उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। सो इसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं या कॉलोनियल पावर हम इसको कहते हैं। सो इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे, और इसका डिस्ट्रैक्टिव इम्पैक्ट इसका कॉलोनियलिज्म का था कि ये इकोनॉमी और लाइवलीहुड को जिन पर ये कब्जा करते थे या जहाँ पे ये जाते थे, जहाँ पे जिस कंट्री में ये कॉलोनाइज करते थे, तो जहाँ पे ये कॉलोनियाँ ये बनाते थे ये यूरोप वाले, या इस वक्त जहाँ पे ये जाएंगे अब इनका रुख अमेरिका से हटकर अब ये अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। और अमेरिका में क्या था, क्योंकि अमेरिका में they were fully satisfied, they were these people were happy because these people were landlords, they were having a vast land, इनके पास बहुत सारा लैंड था और इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, इनके पास बहुत सारे क्रॉप्स थे, इनका एग्रीकल्चर था, सब कुछ था, सीधे साधे लोग थे, लैंड भी बहुत सारी थी और इनके पास बड़े बड़े रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे, माइनस थे, इनके पास स्पेशली गोल्ड था और भी बहुत कुछ था। और यूरोपियन वाले बहुत बड़े चालाक थे, इन्होंने यहाँ पे अब शिफ्ट करना शुरू किया। तो जब इन्होंने वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू किया तो क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे कम थी, लैंड बहुत सारा था और मिनरल्स भी बहुत सारे थे, यूरोपियन ज़्यादा ही इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। और इन्होंने जब ये यहाँ से जाते हैं, यहाँ माइग्रेशन करते हैं, ट्रेड के लिए जाते हैं, पहले ये बहुत बड़े चालाक होते हैं, तो ये पहले कहते हैं यूरोपियन वाले ये प्लांटेशन वहाँ पे करते हैं, कुछ माइनस में कुछ काम करते हैं, कुछ प्रोड्यूस कुछ क्रॉप्स करते हैं वहाँ पे और और उन माइनस में मिनरल्स निकाल के वो अपने यूरोप अपने कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ से खुद जो मिनरल्स यहाँ पे निकलते हैं, गोल्ड एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे कुछ निकलता है यूरोप में, अमेरिका में, एक तो ये प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन के बाद प्रोड्यूस ये क्रॉप करेंगे, उसके बाद मिनरल्स जो यहाँ से निकलते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने मुल्क यानी कि यूरोप पे ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि इनको यहाँ पे मजदूर नहीं मिलते हैं, शॉर्टेज ऑफ लेबर यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि कोई तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि ये बड़े लैंडलॉर्ड्स हो करते थे ये अमेरिका वाले, क्योंकि इनके पास लैंड भी थे, रिसोर्सेज भी थे और ये कोशिश और ये रेडी नहीं थे, विलिंग नहीं थे, राजी इन पे नहीं थे कि हम किसी के अंडर काम करें या किसी का यहाँ पे रूल चले। तो कॉलोनियलिज्म का मतलब ही है कि किसी कंट्री पे रूल करना, उनके लैंड हड़प करना, उसका जो ज़मीन है उसको आहिस्ता आहिस्ता उन पे कब्जा जमाना और वहाँ के रिसोर्स जो है उनको एक्सप्लॉइट करना। तो पहले भी ये बड़े चालाक थे, इन्होंने प्लांटेशन की, इन्होंने डेवलपमेंट, इनको कहा कि हम डेवलपमेंट करेंगे जैसे ब्रिटिश रूल ने यहाँ पे किया यहाँ इंडिया में। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी प्रॉब्लम आ जाती है इन यूरोप वालों की, जब ये पहले यहाँ पे आ जाती है, इनकी शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाता है, क्योंकि कोई तनख्वाह पे इनके लिए काम करने के लिए तैयार ही राजी ही नहीं होता है कि हम आपके साथ काम करें, क्योंकि इनका मजदूर नहीं बनते। इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे मेथड्स कुछ अपनाते हैं ये खुद रिस्ट्रेन करने के लिए, एक ही जगह इनको लेबर रखने के लिए ये कुछ रिक्रूटमेंट्स करते हैं, लेबर को रुकाने के लिए, अपनी तरफ माइल करने के लिए। तो जब ये इंडिया को नहीं मानते हैं तो ये फिर हाई टैक्सेस इम्पोज करते हैं, ये हाई टैक्सेस लगाते हैं कि इनकी लैंड पे, इनके बहुत सारे इनके गुड्स पे, और ये कुछ लॉज ये निकालते हैं, इनहेरिटेंस लॉज ये निकालते हैं कि जो आपकी खानदानी जो विरासत आपकी है कि वो एक ही मेंबर को मिल जाए, कि बाकी जो भाई थे या बाकी घर वाले जो होते हैं उनको फिर मजबूरन उनके कारखानों में, उनके इंडस्ट्री में, उनके कारखानों में, उनके माइनस में उसको काम करना पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे अमेरिका वाले वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज़ रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। रिंडरपेस्ट या कैटल प्लेग ये मवेशियों का एक ताउन, जैसे जिस तरह आज इन्फेक्शन एक वायरल डिजीज कोविड-19 है, इसी तरह एक कैटल्स में जो मवेशियों में उनका एक वबा, एक ताउन की बीमारी, एक जिसको हम रिंडरपेस्ट या कैटल प्लेग कहते हैं, तो ये बीमारी वहाँ पे आ जाती है। इस वाज in America, it was during
ड्यूरिंग इट वाज 1890 में ये फास्ट स्प्रेड हो जाता है डिजीज। जिस तरह आज कोविड-19 है, जिस तरह इसका खौफ, इसका दहशत फैला हुआ है पूरी इकोनॉमी पे, पूरी लाइवलीहुड पे, इसी तरह सेम यहाँ पे अमेरिका में 1890 में हुआ है, जिससे इनको क्या हो जाते हैं, जो ये कैसे वजूद में ये जिस तरह हम कोविड-19 का पहले ये वहाँ पे चाइना की कंट्री से हम कहते हैं कि वो वहाँ से ये कोविड आया है। तो इसी तरह ये इन्फेक्शन रिंडरपेस्ट जो है कैटल की ये मवेशियों का ताउन जो था, ये कहाँ से आया था? ये एक्चुअली ये सोल्जर्स इनके मीट लाते थे, इंपोर्ट करते थे वहाँ से, ये उन्हीं की तरफ से ये उनके मीट के साथ आया है, फिर इनकी कैटलों में ये दाखिल हुआ था। तो इससे क्या हुआ, इसके पहले इनके कैटल्स जो थे, क्योंकि इनके मवेशियों को पहले ये डिस्ट्रॉय करता है, तो जब इनके मवेशी पहले ही ख़त्म हो जाते हैं तो इनका जो पावर होता है यूरोपियन का, उनकी इकानमी डाउन हो जाती है, उनके रहने सहने का तरीका, यानी कि रोज़ी रोटी जो उनकी इसी लैंड पर था या ज़मींदारी पे थे बेचारे, तो लाइवलीहुड इकानमी ये इनकी ख़राब हो जाती है यहाँ पे इस ताउन की बीमारी की वजह से। तो यहाँ पे यूरोपियन वाले बहुत बड़े चालाक होते थे। यूरोपियन वाले इनका पावर जो होता है ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और फोर्सफुली ये क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेज पे और उनके लैंड्स को कनक्यूर कर डालते हैं, जिससे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिंडरपेस्ट या कैटल प्लेग से कोलोनिज्म जो है ये बूस्ट अप हो जाता है और इनके लैंड पे कोलोनिज्म आ जाता है, यानी कि अफ्रीका पे कॉलोनीज जो हैं इनके ये यूरोपियंस इन पे चढ़ाई करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज द रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। जैसे कि यूरोपियन पहले अमेरिका के साथ ट्रेड करता था तो यहाँ के रिसोर्सेज वहाँ जाते थे, इसी तरह यूरोपियंस ने अब दूसरा, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटेन था, जर्मनी था, फ्रांस था, ये नए कुछ कॉलोनियल पावर इनके पास आया था ब्रिटेन में, फ्रांस में, और इससे इम्पैक्ट क्या बहुत एक मिसाल यहाँ पे थी कि डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट था न्यू कॉलोनिज्म का इकोनॉमी पे या लाइवलीहुड पे, किन कंट्रीज पे, किन लोगों पे, कॉलोनियलाइज्ड पीपल पे, जैसे यहाँ पे कॉलोनाइज्ड पीपल जो है अफ्रीका के लोगों पे, उनकी लाइवलीहुड पे, उनकी इकोनॉमी ख़राब हो जाती है इसी कॉलोनाइजेशन से। जैसे ब्रिटिश वाले जो थे, जैसे इन्होंने ये इस इंडिया पे किया था। So this was all about today's topic. Hope dear students you will watch it clearly and get the concept, because actually there is a concept must be clear, because I have told to you that this is not a language subject, but this is dear students, this is history subject. History is actually, if we cut these two H and I, these two alphabets, they remain a story. So the story is there, एक दलील ये होती है, एक स्टोरी कहानी एक होती है। So this there in story, while watching this story you must get the concept. When concept is clear then each and everything is clear. My dear students, इसी के साथ मैं आज का जो वीडियो क्लास है वो इख्तिताम पजीर पहुँचता है। अस्सलाम वालेकुम।